इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैं आपको थोड़ा बेस भी कराऊंगा, और असाइनमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू यू, तो उस वक्त बचा तो उस पे क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है। सभी बच्चे नोट करें, शाबाश। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, look here, the word potential, what does it mean? It means ability to attain some talent, ability to some attain some talent. Like one special day, you are sitting with your father, all of a sudden your maternal uncle comes to your home, and during conversation with your father, your mamaji says to your father, your child has very good potential. If this potential nourished in the proper manner, the child may rise to the officer, class 1 officer, like Indian Administrative Officer, IFS, Indian Foreign Services Officer, ambassadors. So that means potential means raw talent that needs to be nourished. But we are talking about electricity. What is the meaning of potential in the field of electricity? Look, but suppose this is a point and you ask me, sir, is there any potential at this point? I mean, which potential? You say electric potential. Does this point have any electric potential? Indirectly, I will ask you, does this point has the ability to repel away the charges or to attract the charges? So you will say, sir, we don't know. Then I say, does this point has any accumulation of charge, positive or negative? You say, sir, yes. At this point, there is accumulation of positive charge. That means this charge has the ability to influence the other charges. And that ability is known as potential, electric potential. Any that point which accumulates, which makes the positive charges together at a single point, that point attains the ability to repel the charges of same polarity and to attract the charges of opposite polarity. So it acquires the electric potential. How much potential? That is measured in the units of volt. Volt. So similarly, if there is another point Q, there where there is accumulation of negative charge. So this charge has also the potential, but potential depends upon the polarity of charges. So it has the negative potential, which is called as Q, and it has the positive potential, which is higher at point P, and here it is V potential at Q, here potential at P, which will be higher potential and it will be lower potential. Now, never conclude that for a point to have lower potential, it requires a negative charge. No, no. When there are 2 points, teacher means to say more and more positive charge you will accumulate at point P, higher and higher potential will of potential P will rise. More and more accumulation of negative charge at any point Q is there, lower and lower goes its potential. That is what I mean to say. Otherwise, if you have to compare which point has the higher charge and lower charge, then you should remember the
graph sheet. Okay, what is in the graph sheet? It is 0 along the y-axis. It is +1, it is +2, it is +3, -1, -2, -3. So with this memory tool, you can say any point which is at higher height will be having higher potential. So this point will have highest potential. This point will have -3 lowest potential in this diagram. Okay, but instead of points, you can consider them as charge. So therefore, if a point has 10 coulomb charge, it has the highest potential. A point has 9 coulomb charge here, its potential falls. And here it is 2 coulomb charge, potential falls. 0 coulomb charge, potential still falls. -2 coulomb charge, potential further falls. -4 coulomb charge, potential further falls. So to this side, potential falls. Okay. So the answer is any that point which has accumulation of charge has the inability to influence any other charge. And this ability in the term of electricity is known as electric potential. And one more thing, if you join these 2 points, say I join with a straight line, more and more you go closer to the positive charge, potential higher rises. So you can say, sir, potential of L point is lower, potential of M point is higher. I will say yes. In the same manner, if you go closer to the negative charge, potential falls. So you can say, sir, potential of, like you can say, sir, potential of J point is higher, R point is lower. R point is lower, J point is higher in comparison to each other. I will say yes. More and more you go closer to the negative charge, potential falls. More and more you go closer to the positive charge, potential rises up. तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक आइडिया पता लग गया, प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड. शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे. इसका मतलब है परमात्मा की दया से मैं पहला पॉइंट समझाने में कामयाब रहा. अब हम आगे बढ़ते हैं. एक वर्ड आता है दिस, डेल्टा वी. डेल्टा माने ट्रायंगल. जब भी डेल्टा आए बेटे, इसका मीनिंग होता है चेंज. इसका ओवरऑल का मीनिंग हो गया चेंज इन पोटेंशियल, और इन अदर वर्ड यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. So potential of higher point potential minus potential of lower point potential. This is potential. So if somebody says, सर मान लीजिए Q का पोटेंशियल है सपोज -3 वोल्ट. आई सेड ओके. सर मान लीजिए आपके P पॉइंट का पोटेंशियल है +7 वोल्ट. तो बताइए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा. I will say, okay, potential difference between P and Q, that will be written as potential of higher point minus potential of lower point. तो higher का आपने मेरे को बताया 7 वोल्ट, तो I will write +7. lower का बताया -3 वोल्ट, तो I will write -3 वोल्ट. In between, due to this negative my difference, I will put this. So ultimately I will say it is 10 volt. Minus minus becomes plus, 7 plus 3, 10. ओके. तो इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो. राइट. तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने नोट करी कि जो पोटेंशियल है वो चार्ज की पोलैरिटी से बहुत ज्यादा मायने रखता है, लिंक रखता है. आप इसका मेमोरी टूल ये ले सकते हो. पॉजिटिव चार्ज का मतलब 7 गुण बढ़ रहे हैं, बच्चे में अच्छे गुण बढ़ रहे हैं. नेगेटिव चार्ज मीन्स उसमें अवगुण बढ़ रहे हैं. पहले वो शराबी था, फिर वो जुआ भी खेलने लग गया, फिर ड्रग्स भी लेने लग गया, उसका पोटेंशियल डाउन आ रहा. यहाँ पर वो सद अच्छे काम करता था, फिर परमात्मा की भक्ति भी करने लग गया, फिर लोगों की भलाई भी करने लग गया, उसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता गया.
ठीक है। तो पोटेंशियल चार्ज की पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है बहुत अच्छी तरह। और यूनिट क्या बताई टीचर ने, आइदर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल यूनिट इज वोल्ट। ओके, इसी पोटेंशियल को हम छोटी क्लासों में 10th क्लास तक वोल्टेज भी बोलते रहे, वोल्टेज। एक और चीज देखो, मैंने कहीं पर भी पोटेंशियल का आर्टिकल कराते हुए ऐसे कहीं नहीं लिखा, देखो V के ऊपर वेक्टर मैंने कहीं नहीं लगाया, और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से याद रखना, ये चार चीजें बहुत यूज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक, दो, तीन, चार, और चलो एक और लिख देता हूं, पांच। तो आपने देखा इसके ऊपर, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरो लगाया टीचर ने, ये वेक्टर्स हैं। ओके, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस और वर्क, इन चारों पे कहीं भी टीचर ने ऊपर एरो नहीं लगाया। ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटे। मतलब इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वेक्टर अलजेब्रा को भूल जाना है, और इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो +1 का पूरा वेक्टर, वेक्टर चैप्टर पूरा याद होना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा। गॉट इट। और एक इंपॉर्टेंट बात, इन पूरे सारे शब्दों में मैंने दो जगह पर पोटेंशियल वर्ड बोला। कोई बच्चा बोलेगा सर बताना दोबारा कहाँ कहाँ। एक ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में मैंने पोटेंशियल वर्ड बोला। और अभी अभी टीचर ने बोला था पोटेंशियल पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब भी मैं इनके आपको फार्मूले बताऊंगा और आपने फार्मूले में क्यू की वैल्यू पुट करनी है, गिवन वैल्यू, तो वो पॉजिटिव दे रखी है या नेगेटिव दे रखी है, चार्ज की पोलैरिटी को साथ में डालना है। इनके फार्मूलों में, इन दोनों के फार्मूलों में, बस इन दोनों के, बाकी कहीं भी आपने चार्ज की पोलैरिटी नहीं डालनी। जब वर्ड पोटेंशियल लग जाए तो आपने, जो भी मैं कंसर्न फार्मूले अपने बच्चों को कराऊंगा, तो चार्ज की पोलैरिटी प्लस है कि माइनस है, -3 कूलम है तो -3 डालना है फार्मूले में, +7 कूलम है तो +7 कूलम डालना है। और आपको पेपर में ये चीज दी हुई है कि नहीं दी हुई, उसकी पहचान कैसे करनी है, इसकी यूनिट बेटे न्यूटन होएगी, इसकी यूनिट होएगी न्यूटन पर कूलम, ये वोल्ट में होएगा बेटे, ये जूल में होएगा, और ये भी जूल में होएगा, और ये जो होएगा फेरेड में होएगा, फेरेड कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी को कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ये हम आने वाले दिनों में करेंगे। और एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी एक और ऐसे यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर। इसकी दो ऐसे यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर किलो। जिन बच्चों को ये पूरा बोर्ड समझ आ गया है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, इसका मतलब है हम परमात्मा की दया से एक बार फिर से कामयाब हुए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, योर अटेंशन। ये ये जो मैं अब दूंगा बातें, ध्यान से सुननी है, क्योंकि अब फिर फार्मूले में घुसने लगे हम बेसिक्स के बाद। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे, ये एक मेन चार्ज है और ये एक स्मॉल चार्ज है, दोनों चार्जेस में फोर्स बताओ, फोर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय मेन चार्ज एंड स्मॉल चार्ज? मैं कहूंगा बेटे, मेन चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा बड़ा है स्मॉल चार्ज के मैग्नीट्यूड से। यानी आप छोटे वाले को टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो और बड़े चार्ज को मेन चार्ज भी बोल सकते हो। ओके, तो मैं आपसे बोलूं बेटे, इन दोनों में आर गैप है और ये दोनों चार्जेस एट रेस्ट पर हैं, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। आपको कि सर ये आपको याद नहीं क्यूलम्स ला कराया था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के क्यूलम्स कांस्टेंट है। मैंने कहा बहुत अच्छे। ए फिर मैं आपसे पूछूं, इस मेन चार्ज की वजह से
जिस पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वहां पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी मेन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है चारों तरफ, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर कितनी ताकत होगी। इसका मतलब क्या, जहां पर हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, जो पॉइंट मेन चार्ज से स्मॉल आर की दूरी पर है, वहां पर। तो आप कहोगे सर आप भूल गए, आपने डेफिनेशन कराई थी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एक ये फार्मूला कराया था सर आपने, इसको यहां रख दोगे तो स्मॉल के वो कट जाएगा, एक ये फार्मूला होता है। ओके, और ये दोनों एफ और ई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्यू पॉइंट, क्यू चार्ज, सॉरी क्यू चार्ज एट पी। पी क्या है, जहां पर हमने ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है जहां पर हमने टेस्ट चार्ज रखा हो। ओके सर, तो उसका फार्मूला ध्यान से देखना बेटे, वो होता है स्मॉल के मेन चार्ज अपॉन आर। देख लो इस फार्मूले को इससे कंपेयर कर लो, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर, ठीक है। ये किसकी वजह से है, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, और क्यू की नेचर क्या है, ये वाला क्यू, ये एक पॉइंट रेस्टेड चार्ज है, पॉइंट रेस्टेड चार्ज, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना बच्चे, ठीक है। और एक बात ध्यान से सुनना, अगर इन्हीं दोनों पॉइंटों में मैंने आपसे पूछा होता कि इन दोनों पॉइंटों ने बनाया क्या है, तो आप बोलते सर इन दोनों पॉइंटों ने एक सिस्टम बनाया है, और सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। कौन सी भाई, सर आपके दोनों चार्जेस रेस्ट पर हैं, वो एक रेस्पेक्टिव पोजीशन बना के रखे हुए हैं, और जब रेस्टेड पोजीशन ली हो तो एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैंने कहा ओके, तो इस पूरे सिस्टम की वो पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है, वो सर सिस्टम के अंदर है। नहीं, सिस्टम में कौन सा पॉइंट, सर पॉइंट नहीं, जब आपने सिस्टम बोल दिया तो वो सिस्टम में स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर आपने पोटेंशियल पूछना है पर्टिकुलरली, तब आपको पॉइंट मेंशन करना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एट ए पॉइंट होगी, और उस पॉइंट को हमने पी बोल दिया, ठीक है। लेकिन पूरे सिस्टम की क्या बोलने लगा टीचर, अब टीचर बोलने लगा कैपिटल यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब मैं सिस्टम कह रहा हूं बेटे, देखो कोई पॉइंट नहीं मेंशन करा इसमें मैंने, तो उसका फार्मूला होता है के पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब याद रहे इसकी यूनिट होती है जूल, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, दोनों में फर्क याद रखो। तो सभी बच्चे इन चार फार्मूलों को जो टीचर बॉक्स में लिख रहे हैं गौर से देखो, और चारों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। जिन बच्चों को चारों में डिस्टिंक्शन पता लग गया, कहाँ आर का स्क्वायर डालना है कहाँ नहीं डालना, अच्छे से पता लग गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, फिर से सुन लो, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और इसमें पॉइंट नहीं बोलना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम में कम से कम दो चार्जेस तो जरूर होते हैं, दो से ज्यादा भी होते हैं। जब दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तब कैसे एनर्जी निकालनी है मैं बाद में बताता हूँ। एक बात और याद रखनी है बेटे, ध्यान से सुनो, कभी अगर हमने इन दोनों में रिलेशन निकालना हो, पहले एक बात और, एक चीज और मेंशन कर दें, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, और वो दोनों स्केलर हैं। ओके, अब अगर मैंने इन दोनों में
रिलेशन बनाना हो, रिलेशन। ध्यान से सुनना, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। और वो रिलेशन ऐसा रिलेशन होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैलकुलस दोनों के ऊपर लिंक्ड क्वेश्चन होएगा, तो आप उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाओगे। कैसे? ध्यान से सुनना। ये आपस में ऐसे लिंक्ड होते हैं। देख लो, अगर यकीन ना हो तो v की वैल्यू यहां रख दो, वही बन जाएगा। देखो, v की वैल्यू यहां रख दो, आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। पर अब ध्यान से सुनना, मैं खास बात बताने लगा हूं। अब जब हमने किसी चीज को निकालना हो और वो रेशो से निकलती हो, तो टोटल चीज को टोटल से डिवाइड कर दो, या उसके स्मॉल डिफरेंशियल पार्ट को स्मॉल डिफरेंशियल से डिवाइड कर दो, आंसर सेम रहता है। ओके। और अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीजों का पूरी डेरिवेशन में के अंदर मैं ख्याल रखूं और फाइनल रिजल्ट पे पहुंचूं, तो इसमें एक इंप्रूवमेंट और करी जा सकती है, यहां माइनस लगता है। तो सभी बच्चों ने ये फार्मूला याद करना है, क्योंकि लेंथ से डिवाइड करा है तो ग्रेडियंट वर्ड बोला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये प्रूफ सर ने आपको क्लास में कराया हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद रखना है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रूव इट। तो मैं प्रूफ तो करा नहीं रहा, मैं तो आपका बेसिक बना रहा हूँ। बेसिक बनाने के बाद क्वेश्चन कराऊंगा, डेरिवेशंस के प्रूफ नहीं करा रहा मैं। ये याद रखना बच्चे। एक चीज और देखो, शाबाश, अगर मैं इसको और इसको ध्यान से देखूं, ध्यान से देखना, एक मैं और चीज लिख सकता हूं। योर अटेंशन, गौर से देखो, u को मैं r से डिवाइड कर दूं तो मेरे को f मिल जाएगा। यकीन ना हो तो u को यहां पुट करके देखो, ये सारा फॉर्मेट यहां पुट कर दो, आपका क्यूलम्स लॉ वाला फॉर्मेट बन जाएगा। बेटे आप देख नहीं रहे बोर्ड के ऊपर, ये जो कागज कुगज आप साइन सुइन चेंज करने के लिए करते हो ना, ये पता है कहां पर आपको महंगे पड़ने हैं जाके? फाइनल पेपरों में। यकीन ना हो तो अभी अभी थोड़े दिन पहले +2 का रिजल्ट आया, अब निकाल के देख लो इंटरनेट पे, कितने बच्चे फंस गए हैं। सारी जिंदगी वो पास करते रहे करते रहे करते रहे, आखिर में +2 में जाके पूंछ फंस गई उनकी। कहाँ तो स्कूल एज पूरी करके प्रोफेशनल कॉलेज में जाना था, कहाँ वो कंपार्टमेंट क्लियर करने लगे। ये बहुत महंगा पड़ेगा। इस क्लास में आप मेरी सजेशन भी समझ लो और रिक्वेस्ट भी समझ लो, दोनों चीजें समझ लो। बहुत ज्यादा सिंसियर हो जाना, स्कूल की एज में फंस मत जाना, नहीं तो आप तो करोगे कंपार्टमेंट क्लियर और दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा होगा, एमबीबीएस में। अंदर से इतना फर्क आ जाता है। मेरे साथ बैठने वाला बेंच पे बच्चा एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, और मैं कंपार्टमेंट तैयारी कर रहा हूँ। इतना आंसू गिरते हैं अंदर, आंसू बच्चे के। हम चाहते नहीं हम इस तरह की स्टेज में आए। तो ध्यान से सुनो, यू को यहाँ पुट करें तो ये वाला फार्मूला बन जाता है। और एक चीज देखो, अगर मैं कोई चीज रेशो से ऑब्टेन करता हूं, तो उसमें अगर मैं स्मॉल चीज को स्मॉल से डिवाइड करूंगा तो भी आंसर वही आएगा। टोटल को टोटल से डिवाइड कर दो या स्मॉल को कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल से कर दो। और अगर इसमें डेरिवेशनों में मैं बिल्कुल गहराई में जाऊं, तो मैं बताना चाहता हूं इसका फार्मूला असली में ये बनता है। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो ये जो बाद में मैंने दोनों फार्मूले बताए हैं ये वाले, ये कहाँ काम आएंगे? ध्यान से सुनो। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं पोटेंशियल इज इक्वल टू 3r², फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने देखा पोटेंशियल आर वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो dv/dr फायदेमंद रह सकता है।
v की वैल्यू आप यहाँ रखोगे और मैथ के कैलकुलस का फार्मूला लगाओगे, डिफरेंशिएट कर दोगे उसको। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर वो पेपर में पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट r इज इक्वल टू 2 मीटर, ये भी दिया होगा, एग्जांपल ले रहे हैं। तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, लास्ट में जाकर r की वैल्यू 2 मीटर पुट करनी पड़ेगी, तब आपका ई का आंसर आएगा, तब जाके आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर मिलेगा, ओनली 1। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी का मैं ऐसे फार्मूला लिख दूं, देखो ऐसे लिख दूं, कॉस आर अंडर रूट, तो आपने देखा इस फंक्शन में आर वेरिएबल है और यू मेन चीज है, तो यू और आर को लिए हुए ये फार्मूला, यू को यहाँ पुट कर दोगे, आप डिफरेंशिएट कर दोगे, फिर आर की वैल्यू जितनी भी दी होगी आखिर में वो पुट कर दोगे, फोर्स निकल जाएगा। तो गौर से देखो, टीचर ने बहाने से समझाते हुए बोर्ड के ऊपर आपको 7 फार्मूले लिख दिए, और समझदार बच्चे ने अभी याद कर दिया होंगे ये सारे। बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में, अगर अभी याद कर दो। क्यूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात और बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक नाम और भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक बोल दो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों का एक ही मतलब। जिन बच्चों को ये 7 फार्मूले, वो सोचते हैं सर हाँ हमने ये बिठा लिए, अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ सकते हैं, अगर आप चाहो तो इनके ऊपर प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। फीडबैक जरूरी होता है बच्चे। ओके, तो क्या हम वाकई फार्मूलों क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ सकते हैं? नहीं, अभी थोड़ी कसर है, अभी थोड़ा और तैयार करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो एक चीज और देखो, अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हो कि आप वाकई बच्चे हो कि मेच्योर हो चुके हो, तो अपने दिलों से पूछो, क्या ये आपने 7 फार्मूलों की लिस्ट बनाई कॉपी पे? अगर नहीं बनाई तो अभी 9th लेवल का ब्रेन है आपका, आप मेच्योर हुए नहीं। अगर आप कहो सर बाकी हमने खिलारा नहीं लिखा, आप तो बहुत कुछ बोलते हो, पर हमने बॉक्से बॉक्से जरूर नोट कर लिए नोटबुक पे, तो आप मेच्योर हो, वरना तो आप अभी बच्चे ही हो। अपने दिलों से पूछ सकते हो। अब और क्या सर तैयारी करने की जरूरत है ताकि हम क्वेश्चंस पे चलें? वो है ये बेटे, पोटेंशियल। पोटेंशियल जब मैं बोल लूं तो इलेक्ट्रिक अंडरस्टूड है अपने आप ही, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का बेसिक बताना अभी जरूरी है, वरना आप कर नहीं पाओगे पोटेंशियल के टर्म्स में। एक बच्चा कहेगा सर पहले भी करा था हमने, इक्वेटोरियल एक्सियल उक्सियल करा था, भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करा था। अभी मैं टीचर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में पूछ रहे बोल रहा है। ओके, यानी पहले कैपिटल ई का करा था और आज हम ई का नहीं कर रहे, वी का कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, वेरी गुड। सर पोटेंशियल डाइपोल तो वो नहीं था जिसमें से एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों को 2a डिस्टेंस से आपने सेपरेट करा, दोनों चार्जेस बराबर हैं, एक और एक प्लस है एक माइनस है और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मैंने कहा यस सर। इसमें आपको याद है कि ज्वाइनिंग लाइन के बाद मिड पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची थी और उसको आप इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते, इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे और बोर्ड ऑन लाइन भी बोलते थे। यस, अब आ गई असली बात। क्या सर, क्या मैं पूछता हूं किसी भी बच्चे से कि यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया पी इक्वेटोरियल लाइन पर, उसके ऊपर कितना नेट पोटेंशियल होगा? ठीक है, देखो नेट पोटेंशियल पी के ऊपर कितना होगा? कोई क्लास में बच्चा है जो बता सके? एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल? नहीं बता पा रहे? ध्यान से सुनना अब,
अब ध्यान से सुन लेना बच्चे, आप हेलो मीना कहोगे जी। सर। यस। हाँ बहुत अच्छे, नॉन मेडिकल के बच्चे, शाबाश। मेडिकल के बच्चे नहीं बोल पाए, इसलिए मेरे को बताना तो पड़ेगा। देखो बेटे, आपने ना इसकी आर दूरी ले ली, ठीक है सर, और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इतनी दूरी ए होगी, ठीक है सर। अगर मैं इन दोनों को यहां दिखाऊं तो आप कहोगे सर ये आर है आपका और ये इतना ए है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं ये हाइपोटेन्यूज कितना होएगा भाई? आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ओके, अब ध्यान से सुना, मैं पूछूं इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होएगा, तो आप कहोगे सर अच्छा, नेगेटिव चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल पूछ रहे हो एट पी। मैंने कहा यस सर, आपने पॉइंट चार्ज की वजह से हमें फार्मूला कराया था। मैंने कहा कितना? सर के चार्ज और ये जो दूरी होती है ना, अब वहां पर आपने आर लिखाया था, यहां पर ये दूरी आपकी एच है, तो एच लिख दो। मैंने इस फार्मूले को लिख तो दिया, लेकिन इसमें मैंने जानबूझकर एक मिस्टेक करी है। कोई बच्चा बताएगा कौन सी मिस्टेक? नॉन मेडिकल के बच्चों ने सही बता दिया। वो कहते हैं सर आपने खुद ही बोला था चार्ज की पोलैरिटी को जरूर लेना है पोटेंशियल के आर्टिकल से, तो आप यहाँ माइनस डालो ना। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा ओके पोटेंशियल इधर से कितना होएगा, पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पर इधर को। आप कहोगे सर ये भी तो हाइपोटेन्यूज होएगा, प्लस चार्ज को आपको प्लस लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा कितना होएगा? पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस चार्ज। बच्चा कहेगा सर सेम होएगा, बस चार्ज को प्लस में रखो आप। गॉट इट? अब मैं कहूंगा नेट पोटेंशियल कितना होएगा? कोई बच्चा बताएगा नेट पोटेंशियल निकाल लगाने के लिए, नेट पोटेंशियल निकालने के लिए इसके ऊपर क्या मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाऊं कि ना लगाऊं? जो बच्चे कहते हैं लगाओ वो विक्ट्री का साइन बनाओ, जो कहते हैं नहीं लगाओ वो सिंगल फिंगर खड़ी करो। शाबाश, गिव योर आंसर। मैंने यहां पर अब इधर से निकाल लिया, इधर से निकाल लिया, अब इन दोनों नेट निकालना चाहता हूं। जो कहते हैं ना निकाल ना लगाओ सर वो सिंगल फिंगर, जो कहते हैं पैरेललोग्राम लगाओ वो विक्ट्री का साइन। बताओ कौन सा? नॉन मेडिकल ने जवाब दे दिया, शाबाश। मेडिकल ने भी दे दिया, बहुत अच्छे, शाबाश देनी पड़ेगी। आप कहोगे सर आप खुद ही भूल गए क्या, आपने इसको बोला था कि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में वेक्टर कैसे लग जाएगा? आप इन दोनों को ऐड करो, तो v ड्यू टू माइनस क्यू और v ड्यू टू प्लस क्यू। अब जैसे बेटे इनकी दोनों की वैल्यू पुट करोगे, आपको पता है इनको अच्छे से देखते हुए आंसर आएगा 0 वोल्ट। कट गए आपस में। तो लर्निंग पॉइंट क्या है? डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर जो इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं भी लाई करता होगा उसका पोटेंशियल 0 0 0। जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड। शाबाश। ये था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, और ये मिड पॉइंट, और डाइपोल की लेंथ 2a, और अब मैं जो पॉइंट ले रहा हूं वो एक्सियल एक्सिस पर ले रहा हूं। ये लो, ये ज्वाइन कर दी एक्सियल एक्सिस। ये पॉइंट हो गया ऑब्जर्वेटरी जो मिड पॉइंट से आर दूरी पर है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ओवरऑल दोनों तरफ बढ़ा दें तो एक्सियल एक्सिस या एक्सियल लाइन भी बोल देते हैं। देखिए कौन से बच्चे की अच्छी अच्छी मेमोरी है। इस एक्सियल लाइन का मैंने एक और नाम भी बताया था आपको। व्हाट इज द अदर नेम? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्सियल लाइन? देख लो बेटे, देख लो। अब तुम कल को उस नाम को लेकर अगर क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ के आ जाओगे पेपर में। कितने बच्चे हैं नॉन मेडिकल में? लगा लो लगभग 60, 60 नहीं तो 40 तो लगा ही लो।
मेडिकल में भी इतने की लगा लो। 80 बच्चों में एक भी नहीं बता रहा। अब देख लो रिवीजन चल रही है, रिवीजन कितनी की चल रही है, और जब मैं बोलूंगा तो सभी को याद आ जाएगा। उसी टेक्निक से बताता हूं जैसे पहले बताया था। मैंने कहा था बेटे ये दो डाइपोल है, और इसका एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। मान लो दोनों किनारों को आपने ऑन कर दिया, तो ये लाइन इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। तो इस एक्सियल लाइन का एक नाम और भी होता है, एंड ऑन लाइन। ये मैंने आपको बताया था पिछली बार, पिछले से पिछली बार। और इसी तरह से जो देखो, ये भी समझ लो, अगर ये डाइपोल है तो इसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है, जहां मेरा हाथ जा रहा है, ये वाला, इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहने के साथ साथ बोर्ड ऑन लाइन भी बोलते हैं, BOARD, बोर्ड ऑन लाइन। ओके, अब यहां पर पोटेंशियल निकालना है बेटे। कोई बच्चा बताएगा कैसे करे इसको? एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट कैन बी द प्रोसीजर फॉर इट? शाबाश, कोई बच्चा बताएगा? एक्सियल एक्सिस के, हाँ, नॉन नॉन मेडिकल में से कुछ कुछ आवाज आने लगी थी पर हट गई। बोलो बोलो। देखो बेटे, पता नहीं आप क्यों गड़बड़ कर देते हो। आप कहोगे सर एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है, दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो और उनको सिंपल ऐड कर दो, पैरेललोग्राम तो लगाना ही नहीं आपने इसमें। मैंने कहा ओके, बस एक ख्याल रखना सर, जब आप दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल निकालोगे ना, दोनों की वजह से पी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट की वजह से निकाल रहे हो उस चार्ज की पोलैरिटी का ख्याल रखना है बस आपने। मैंने कहा ठीक है, लो, वी नेट एट पी, देखो ध्यान से देखना आप, इज इक्वल टू वी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू प्लस वी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, और दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं। मैंने कहा सर फिर तो फार्मूला लगा लें। सर बच्चा कहता है यस लगा लो, के क्यू अपॉन डिस्टेंस लगाना होता है। डिस्टेंस कौन सा, नेगेटिव चार्ज से कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला, इसको एल कह देता हूं, के क्यू अपॉन एल। ओके, फिर मैं दूसरा भी तो लिखना है बेटे, आप कहोगे सर लिख दो, के प्लस क्यू, आप कहोगे सर प्लस क्यू से डिस्टेंस ले लो अब, तो मैंने कहा उसको कितना लूं, मैंने एक्स ले लिया, चलो एक्स ले लिया। ओके, मैं आपसे पूछूं बेटे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? योर स्टेप यू शुड से सर के क्यू आपका कॉमन आ गया। मैंने कहा ठीक है सर, यहाँ आपका 1/x आ गया, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव को अंदर रखो, -1/L आ गया। मैंने कहा भाई लेकिन मेरे को x और l तो गिवन नहीं है। कैसे नहीं गिवन सर, आप अच्छे से देखो आपको पता है। मैंने कहा कैसे सर? लुक एट दी डायग्राम, एल जो है ना वो आर दूरी में यहाँ इतना ऐड कर दो। मैंने कहा ये इतना कितना? सर हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल। टोटल लेंथ डाइपोल की कितनी है? 2a। आप मिड पॉइंट से ले रहे हो तो ए ही आएगा, ए प्लस आर लिख दो सर। आप किसकी जगह लिखो? सर एल की जगह लिखो आप, एल की जगह ए प्लस आर। मैंने कहा फिर तो एक्स भी आ गया बड़े आसानी से। हाँ जी सर, पूरे आर में से आप इतना ए माइनस कर दो, आर में से ए माइनस कर दो आप। देखो पूरा आर कितना है, ये येलो कलर से शो कर रखा है। ये इतना कितना, इतना जिस पर टीचर मार्कर कर रहा है ये ए है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल। आर में से ए माइनस कर दो तो एक्स ही तो बच गया। तो आप कहोगे सर आर माइनस एक्स कर दो। अब मैं इनको पुट कर देता हूं। जैसे ही मैंने पुट करा, ध्यान से देखना क्या बन गया, के क्यू इन द ब्रैकेट। बेटे यहां देखो क्या बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया आर माइनस ए, और यहां बन गया आर प्लस ए। ओके, आर माइनस ए, आर प्लस ए। तो आपने एलसीएम ले लिया बस। तो
हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? बेटे एल की वैल्यू आएगी आर प्लस ए और एक्स की वैल्यू आएगी आर माइनस ए, वही लिखे टीचर ने। एल की वैल्यू आर प्लस है और माइनस है। अब एलसीएम ले लो बस, के क्यू इन द ब्रैकेट, यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम, आर माइनस है आर प्लस है, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, आर प्लस है इन द ब्रैकेट आर माइनस है, ब्रैकेट क्लोजिस, के क्यू, और नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी का मैथ का फार्मूला स्टैंडर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखो ये आर से आर कट जाएगा लेकिन ए प्लस हो जाएंगे, 2a प्लस हो गया। अब आपको याद होगा जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट करवाया था तो वो क्यू इंटू 2a कराया था, तो आ तो गया क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, तो क्या बन गया पोटेंशियल, के पी, के और इन दोनों का पी मिला दिया वो देखो, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए, ये आपने याद रखना है। कौन सा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, कौन सी एक्सिस पर, एंड ऑन लाइन पर, ऑन एंड ऑन लाइन पॉइंट, लाइन पॉइंट। जिन बच्चों को ये समझ आ गया फीडबैक देनी है, प्लीज रेज योर हैंड, जिनको ये समझ आ गया। ओके, जो बच्चे अपने पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कमाई की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो अभी इसी वक्त इसको याद कर देंगे, अभी इसी वक्त 3-4 बार मुंह में बोल के रिवाइज कर दो इसको अभी इसी वक्त। एक फार्मूला हम और करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, मैं इसको मेमोरी में डाल दिया, शाबाश। अब मैं एक चीज और बताने लगा हूं बस, अगर मैंने डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना हो, ये लो माइनस क्यू प्लस क्यू और मिड पॉइंट, और ये वाली लाइन ले ली मैंने, लो आर दूरी पर, ऑब्जर्वेटरी पॉइंट यहां ले लिया भाई। अब मैं आपसे पूछूं भाई क्या ये एक्सियल एक्सिस है, आप कहोगे सर एक्सियल एक्सिस तो नहीं है। हाँ, एक शर्त में आपकी एक्सियल एक्सिस हो सकती है, अगर आप ये थीटा को 0 डिग्री पुट कर दो, तब आपके पॉइंट पी को इधर गिरना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, इधर माइनस क्यों है तो इधर प्लस क्यों है, तो पी की डायरेक्शन किधर को होती है, हमेशा इधर होती है, माइनस से प्लस। और आर की डायरेक्शन कौन सी होती है, मिड पॉइंट से ऑब्जर्वेटरी पॉइंट की तरफ होती है। ओके, अगर मैं बोलूं कोई बेटे ये थीटा अगर 90 डिग्री कर दे, तो सर अगर 90 करोगे ना तो ये मिड पॉइंट से वर्टिकली खड़ा हो जाएगा, तब आप ये वाली एक्सिस ना आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस बन जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन या एक्सिस। मैंने कहा अच्छा, तो इस सिचुएशन में बताओ मेरे को, तो याद रखना मैं डायरेक्ट बताने लगा हूं, मैं पिछली बार आपको रिजल्ट का प्रूफ कराया था, इस बार मैं बिना प्रूफ के लिखाने लगा हूं फार्मूला, सभी बच्चे याद कर लेना। क्यूलम्स कांस्टेंट, माइंड में एकदम उसकी वैल्यू देखो, क्यूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद है वगैरह वगैरह के नहीं याद, अच्छे से याद करनी चाहिए आपको। डाइपोल मोमेंट याद करो, डाइपोल मोमेंट कहीं भूल तो नहीं गए, नहीं भूले, और याद रहे लेंथ ऑफ द डाइपोल हमेशा ही 2a लिया है। और नीचे यहां पर ये जो जनरल एक्सिस के ऊपर, ये जनरल एक्सिस कहते हैं इसको, नाइदर इक्वेटोरियल नॉर एक्सियल, जनरल एक्सिस। ये जो जनरल एक्सिस के ऊपर आपका जो डिस्टेंस दे रखा है, इसका आपने स्क्वायर लेना है। इस थीटा का क्या रोल है, याद रहे थीटा का ये रोल है, यहां पर आपने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल एट एनी जनरल एक्सिस ड्यू टू स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल लिया मैंने, सर स्मॉल डाइपोल का क्या मतलब,
मतलब ये कि जो 2a है ना, उसकी दूरी r के मुकाबले काफी कम है, तब स्मॉल डाइपोल होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे से कोई बच्चा पूछता है, सर आपने इसके ऊपर कंडीशनल फार्मूला कर दिया स्मॉल डाइपोल का, मान लीजिए हमें पेपर में स्मॉल डाइपोल ना हो, जनरल आ जाए, स्मॉल ना हो लेकिन जनरल एक्सिस हो, तो क्या हम याद करें? तो भी एक फार्मूला आप याद कर सकते हो बेटे। ठीक है। तो वो क्या फार्मूला है, ध्यान से सुनो। वी ए क्या था? स्मॉल डाइपोल, जनरल एक्सिस। समझदार बच्चे ने याद कर लिया होगा। अब इसमें मैं जनरल एक्सिस लिख रहा हूं, स्मॉल डाइपोल हटा दिया मैंने। दोनों फार्मूले आपने इस, ये देखिए बेटे ये आर का स्क्वायर है, क्यूब मत कर लेना, आर का स्क्वायर। दोनों फार्मूले आपने एक दूसरे के पैरेलल याद रखने हैं। क्या है? के पी कॉस थीटा। बच्चा कहेगा ओके सर, न्यूमरेटर तो सेम ही है ना, बिल्कुल सही। और यहां पर आपने लिखना आर स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा, उसका भी स्क्वायर, ब्रैकेट। ठीक है। अगर ए बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू दिस, इसको जीरो पुट कर दो तो वही बन जाएगा फार्मूला। जिन बच्चों ने ये दोनों फार्मूले याद कर लिए हैं वो अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने क्लास टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरी भी करते हैं, धीरज वशिष्ठ की। शाबाश। मेरे को हौसला दो, अपने टीचर को हौसला दो, सर हमने ये कर लिया। रेज योर हैंड इफ यू हैव लर्न दिस। शाबाश शाबाश। ये बनी ना बात। मेरे बच्चे अपना भला तो कर ही रहे हैं और टीचर का भी मनोबल बना के रखते हैं, टीचर को मैसेज देते हैं, नहीं सर सिर्फ आप ही काम नहीं कर रहे, हम भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं आपको। तो लगभग देखा जाए तो लगभग 10 फार्मूले आज मैंने कराए, और 10 के 10 फार्मूलों में मैं पोटेंशियल से बाहर नहीं आया। इसका मतलब मैंने पोटेंशियल का समझाते हुए आपका बेस बनाया। याद रहे एक बात, मैंने डेरिवेशंस नहीं कराई, ना के बराबर कराई। डेरिवेशंस आपको करनी होती हैं खुद, या क्लास टीचर कराते हैं। मेरे को कहोगे तो मैं भी करा दूंगा, पर मैसेज पहुंचा देना। अब हम ये देखते हैं, अगर टाइम बचा तो इसकी असाइनमेंट। एक दोनों टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर मेरे को बताओ टाइम बचा है या नहीं। सर टाइम हो गया। अच्छा बेटे एक बात है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो जाने से पहले। ये मैंने ना इसके ऊपर सिर्फ 7 क्वेश्चन दिए, ओनली 7 क्वेश्चन। जब अब इसको मूड से करोगे ना, मूड से बैठ जाना, मूड से, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं 7 में से तुम 5 कर दोगे, 7 में से 5 खुद कर दोगे, और तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्या मजा आ जाएगा आपको। तो आप इसको घर पे जाके ट्राई करना, यू विल बी वेरी हैप्पी। कौन बच्चा मेरे को प्रॉमिस करता है सर अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, होए चाहे ना हो? रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देख, ये आप इस बार जो आपने हाथ खड़ा करा ना, मेरा दिल करता है मैं क्लास में जाके आपको शाबाश दूं एक एक बच्चे, क्योंकि बच्चे अगर दिल से ईमानदार हैं तभी वो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम आप इसको ट्राई करके आना, फिर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आती। थैंक यू, बाय।